ٹھیک ہے چلیں عفیف خواجہ سے بات کرتے ہیں. ہیلو آداب عفیف، کیا کیسے آپ؟ غالب بھائی. جی ہاں جی میں آداب. بالکل ٹھیک ہوں. ایکسٹریمزم سے ہٹ کے کچھ ٹاپک تھا میرے پاس موریلٹی کے بارے میں، اگر آپ اجازت چلے دیں کر تو لیں میں بات، آپ کریں کچھ کریں بات. اچھا بشکیہ. ایک سیکنڈ میں سپر چیٹ دکھا دوں. جی دھما رتنا نے ایک سپر چیٹ بھیجی. محمد کیا یہودی تھا تو ان کے بھاشا عربی کیسے ہوئی؟ محمد یہودی نہیں تھا جی، محمد عرب تھا، اور محمد کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ عربک تھا. عربس کی زبان عربک تھی، اور ہیبرو ہوتے ہیں جن کی زبان، یا عبرانی ہوتے ہیں جن کی زبان ہیبرو ہوتی ہے یا ارمک ہوتی ہے، تو وہ یہودی تھے. یہ یہودی نہیں تھے. پیلسٹینینز کی بھی اس ٹائم زبان ایون کہ حضرت محمد کے وقت میں بھی ارمک تھی، اور عربی جو تھی وہ فٹ ہولڈ لینا شروع ہو رہی تھی اس ٹائم دنیا کے اندر. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ہے. اچھا چلیں دھرما رتنا بہت شکریہ. دوستو آپ بھی سپر چیٹ سپر سٹیکرز کے تھرو اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس چینل کے لیے، اس چینل کو چلانے کے لیے، اس چینل کو کنٹینیو رکھنے کے لیے. آپ جیسے لوگ جو سپورٹ دیتے ہیں سپر چیٹس کے تھرو، پیٹریون کے تھرو، دوسرے مینز کے تھرو، وہی جو ہے اس چینل کو چلانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے. اچھا جی عفیف کیا کہنا چاہیں گے؟ جی پہلا سوال تھا غالب بھائی کہ موریلٹی کیا ہے، کسی چیز کو اچھا یا برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ موریلٹی کیا ہے؟ میں تو موریلٹی کی بیسس بڑی بار اس چینل پہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ موریلٹی کی اوریجنل بیسس جو ہے وہ کیا ہے. وہ ہمیشہ سے انسان کی ایوولوشن میں بیس ہے. ریسیپروکیشن کی بات ہے ایک. دوسری بات ہے فیئرنیس کی، سینس آف فیئرنیس کی. ریسیپروکیشن کہاں سے نکلتی ہے کہ آپ کسی کو کچھ پرووائڈ کرتے ہیں، کوئی اس کے بدلے میں آپ کو کچھ پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ چیز فیئرنیس کی بیس پہ ہونی چاہیے. سودا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں جو آپ دے رہے ہیں آپ کو اس کے ایکولی کچھ ملے. ٹھیک ہے، اس سے کم نہ ملے. صحیح ہے، گھاٹے کا سودا نہ ہو. دوسری بات ہے کہ پھر سینس آف فیئرنیس کہاں سے آتا ہے؟ سینس آف فیئرنیس بڑی سمپل چیز ہے. سینس آف فیئرنیس کہاں سے آتا ہے؟ جب بچے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں، میملز کے بچے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہی کوئی بچہ ایسا، کیونکہ ماں کے سب نپلز کے اندر ایک برابر دودھ نہیں آتا ہے. چاہے بلی ہو، چاہے کتا ہو، چاہے کوئی اور جاندار ہو، نہیں آتا برابر. ٹھیک ہے، تو وہاں سے بھی بچے آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں. اور کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کچھ اسپیشیز کی کہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ سب بچوں کو کھلانا ہے. کچھ بیچاری ایسی نہیں ہوتی کہ جن کو نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، تو سینس آف فیئرنیس پیرنٹ ہوڈ سے آتا ہے. اور سینس آف فیئرنیس ایک کدھر سے بات آتی ہے کہ جب ماں باپ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سارے بچوں کو سروائیو کرانا ہے، تو وہ سب بچوں کے ساتھ فیئر چلتے ہیں. ہاں مگر ہمیں اینیمل کنگڈم میں اس بات کی وائلیشن ہوتی ہوئی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ بہت سی مائیں اپنے بچوں کو ریجیکٹ بھی کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، مگر عام طور پہ یہ چیز پائی جاتی ہے. دوسری بات ہے کہ اگر آپ پرائمیٹس کو دیکھیں تو ان میں بڑا اسٹرانگ سینس آف فیئرنیس ہوتا ہے. سینس آف ریسیپروکیشن بھی ہوتا ہے. مختلف ایکسپیریمنٹس گوریلاز پہ، چمپینزیز پہ، اورانگاٹانز پہ، بونوبوز کے اوپر کیے جاتے ہیں. ایون کہ کپوچن منکیز کے اوپر کیے جاتے ہیں، مکیکس کے اوپر کیے جاتے ہیں، جن میں ہمیں اچھے طریقے سے پتا لگتا ہے کہ ان میں ایک سینس آف موریلٹی بھی ہے. ایک دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے کیونکہ دوسرے کو ہیلپ کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے کیونکہ دوسرا اسے بدلے میں کچھ دے گا. ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرتا کیونکہ وہ دوسرا اس کے ساتھ فیئر نہیں چلا. تو موریلٹی کیا ہے؟ موریلٹی اصل میں ایک سوسائٹی کے فنکشن کرنے کے لیے پراپر طریقے سے فنکشن کرنے کے جو رولز ہیں وہ موریلٹی ہیں. کوئی بھی سوسائٹی اگر کہیں پہ کچھ جاندار رہتے ہیں ایک سوشل گروپ کی شکل میں، تو وہاں پہ موریلٹی ہمیشہ ہوگی. موریلٹی کے بغیر کام چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ہے کہ موریلٹی کے ساتھ ہی کام چلتا ہے، اور موریلٹی اگر نہیں ہوگی تو وہ سوشل گروپ آپس میں چل نہیں سکتا. یعنی اب ایک بات سوچیں کہ 100 انڈیویجول ہیں انسانوں کے، آپ ان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں چھوڑ دیں اور آپ ان کو کوئی موریلٹی نہ سکھائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں کمیونیکیشن کے آپس میں چلنے کے کوئی رولز اور ریگولیشنز نہیں بنائیں گے؟ کیا وہاں پہ کسی کا سر پتھر مار کے پھاڑ دینا جائز ہوگا؟ کیا کسی کو ریپ کر دینا جائز ہوگا؟ کوئی قانون نہ دیں، کیا جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا جائز، ہو ہی نہیں سکتا جائز. کیوں نہیں ہو سکتا جائز؟ کیونکہ بڑی سمپل سی بات ہے، کیونکہ وہ فنکشن کیسے کریں گے پھر؟ تو کوئی یہ اگر سمجھے کہ موریلٹی کسی مذہب سے آتی ہے یا کسی خدا نے دیا ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. کیونکہ جب آپ کچھ انڈیویجولز کو کسی جگہ پہ رہیں گے اور ان لوگوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپس میں کوآپریٹ کرنا ہے، آپس میں کام کرنے ہیں مل کے، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چاہے پروٹیکشن کسی
फाइटिंग फोर्स के खिलाफ ना हो, एलिमेंट्स के अगेंस्ट ही हो कि सर्दी कैसे सर्वाइव करनी है। आप 100 लोगों को कहीं छोड़ दें तो उन्होंने, सर्दी का मौसम है और बड़ा सख्त सर्दी है, तो क्या उन्होंने मिलकर सर्वाइव नहीं करना? उन्होंने करना है। उधर उनको आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा कि यार मैं लकड़ी काटूंगा, मैं लिबास बनाऊंगा, मैं फलां चीज करूंगा, मैं फलां चीज करूंगा, और सारे मिलके उनको चलना पड़ेगा, और वहां पे कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होंगे। यही मोरालिटी है असल। बहुत शुक्रिया गालिब भाई। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी में फ़र्क क्या है? क्या मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव? मोरालिटी जो है ना ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई, मोरालिटी सब्जेक्टिव ही है। ठीक है, उसमें फ़र्क क्या है? मतलब उसका ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब है कि मोरालिटी बदलती नहीं है। ठीक है, मोरालिटी यूनिवर्सल है, मगर मसला ये है कि पर्सन टू पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम मोरालिटी हमेशा बदलती है, इसलिए सब्जेक्टिव ही है, और लोग बदलते हैं मोरालिटी को। जी, तो मेरा सवाल ये था कि पुराने ज़माने में जो गुलाम लौंडियाँ बनाते थे, तो उस ज़माने के लिहाज से फिर वो बुराई थी या फिर उसको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता था? उस जमाने के लिहाज से भी उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, और उस जमाने के बगैर भी उसे क्रिटिसाइज किया जा सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि सब्जेक्टिव मोरालिटी के चक्कर में हम उन लोगों को माफ कर देंगे गुलामी के लिए जो कि गुलामी करते थे, तो ये तो बात फिर गलत है ना। क्यों, सोचने की बात है। दूसरी बात यह कि असल में सबसे पहली बात याद रखें कि जो कोई शख्स कहता है उसको उससे तोला जाता है। अगर हजरत मोहम्मद ये कहते हैं कि वो रहमतुल आलमीन है, वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, तो फिर मुझे आप एक बात बताएं, और हमेशा तक सबसे अच्छे इंसान है, तो मुझे आप एक बात बताएं कि आज हजरत मोहम्मद को एक 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 ले लें, जिसे आप कहते हैं एक एक तकड़ी ले लें या एक बैलेंस ले लें, ठीक है, वेट बैलेंस, और एक तरफ आप हजरत मोहम्मद को रखें और दूसरी तरफ आज के अच्छे इंसान को रखें, तो मुझे बताएं कि फिर हजरत मोहम्मद जिनका क्लेम है कि वो हमेशा के लिए सबसे अच्छे इंसान है, वो आज के अच्छे इंसान के मुकाबले में तोले जाएंगे? नहीं। मेन प्रॉब्लम यह है कि हम जो क्लेम है उससे लड़ रहे हैं अभी। और आज भी दुनिया में देखें, आज चंगेज खान ने जो दुनिया में किया था, चंगेज खान को कोई इतना हार्शली जज क्यों नहीं करता? क्योंकि दुनिया आज चंगेज खान को अच्छा नहीं समझती। आपकी और मेरी इस बात पे बहस ही नहीं आपस में कि चंगेज खान अच्छा था कि बुरा था। मेरी और आपकी इस बारे में डिबेट ही नहीं है कोई भी। हम दोनों इस बात पे अग्री हैं कि यार वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, ही इज नॉट अ गुड एग्जांपल, हमें उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। एडोल्फ हिटलर के बारे में आपकी और मेरी राय एक है, उन पर झगड़ा नहीं है, मगर हजरत मोहम्मद पे या जीसस पे या मूसा पे ये झगड़ा खड़ा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि वो लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग थे और जो उन्होंने किया था हमें वही करना है, चाहे उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी की हो, चाहे उन्होंने लौंडियां और गुलाम बनाए हो, चाहे उन्होंने लोगों के ऊपर हमले करके उनको लूटा हो, चाहे उन्होंने रेसिज्म की बातें की हो, जैसी भी चीजें की हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग थे। तो बात यह है कि यहां पे जब वो लोग ये समझते हैं कि वो लोग बहुत अच्छे थे और उनके कानून को आज हम पे और खुद पे नाफिज करने लगते हैं, तो वो दुनिया में बिगाड़ पैदा करते हैं। हजरत मोहम्मद के कैरेक्टर को तोलना इसलिए जरूरी नहीं है कि उन्होंने हिस्ट्री में फलां काम किया था तो फलां काम नहीं किया था, ठीक है। उनके कैरेक्टर को तोलना इसलिए जरूरी है कि लोग आज हजरत मोहम्मद को बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है, ये बात है। जी, बहुत शुक्रिया गालिब भाई। मुसलमान कहते हैं कि एवोल्यूशन एक बहुत ही क्रूअल सिस्टम है, सेल्फिश सिस्टम है, जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो वो कहते हैं कि अगर आप एवोल्यूशन को मानते हैं तो इसकी बेसिस पे तो आपको मोरालिटी बनाना ही नहीं चाहिए। नहीं तो आपको कौन कह रहा है कि मोरालिटी एवोल्यूशन की बेस पे बन रही है? नहीं बन रही है। अच्छा, एवोल्यूशन की बेस पे तो मोरालिटी नहीं बन रही। हाँ, एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क के अंदर ही मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, ये हमें पता है, मगर मोरालिटी एवोल्यूशन तो नहीं बना रही। और दूसरी बात है, एवोल्यूशन अगर क्रूअल है तो भाई एवोल्यूशन कौन सा खुदा की तरह कुछ बैठ के डिसाइड करती है और चीजें होती हैं? एवोल्यूशन तो कुछ डिसाइड नहीं करती, ठीक है, राइट। एवोल्यूशन तो कुछ डिसाइड नहीं करती। जी, तो इसका मतलब ये एवोल्यूशन तो तब अगर कुछ एवोल्यूशन अगर सोच के कुछ करती होती तो तब एवोल्यूशन को ब्लेम किया जा सकता था। ब्लेम उस चीज को किया जा सकता है जो कॉन्शियस है। अब एक सिंपल बात है, एक पत्थर है पहाड़ की चोटी पे पड़ा हुआ, एक जलजला आए और वो पत्थर वहां से नीचे गिरे और नीचे उतर के किसी बच्चे को मार दे वहां से पत्थर, तो अब आप क्या पत्थर को फांसी देंगे? मुझे बताएं। नहीं। क्यों नहीं दे सकते आप पत्थर को फांसी? क्योंकि पत्थर की कोई डिसीजन नहीं है। इसी तरह एवोल्यूशन की भी कोई डिसीजन नहीं है। एवोल्यूशन कुछ डिसाइड नहीं करती एवोल्यूशन। और यह भी याद रखेंगे एवोल्यूशन है क्या है। एवोल्यूशन दो फोर्सेस के दरमियान में क्या है? एक मुकाबला है।
सर्वाइवल और लाइफ, इन दो चीजों के दरमियान में। लाइफ ने सर्वाइव करना है, सर्वाइवल के लिए लाइफ ने मुख्तलिफ एक्शंस करने हैं। सर्वाइवल लाइफ का यह भी है कि एक बाज होगा और छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे अपने घर से बाहर निकलेंगे और बाज आके उनको खा के चला जाएगा। तो अब ये उसकी एवोल्यूशन है जो कि उसे इतना जालिम बनाती है, क्योंकि वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता, वो नहीं कर सकता कुछ भी, वो खुद मर जाएगा। तो फिर क्या होगा, सोचने की बात है ना। ठीक है, तो फिर नेचर में मोरालिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, मतलब रियलिटी में? मोरालिटी जो है वो एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। मोरालिटी आपका और मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मोरालिटी मेरा और आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक मजहबी नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि आप भी एक सोशल बीइंग है, मैं भी एक सोशल बीइंग हूं, हम दोनों एक खास तरीके से सोचते हैं इस वजह से, और वो सोच जहां पे दोनों की कनेक्ट करती है, कुछ रूल्स बनते हैं, वो रूल्स मोरालिटी है। मोरालिटी बड़ी आर्केक भी हो सकती है कि एक आदमी जो है उसकी मोरालिटी में सिर्फ यही आता है कि हाँ भाई मेरा घर है ये और फलां एंड हम कहाँ हैं। दूसरा आदमी ये है कि वो दूसरे की फीलिंग्स के बारे में भी सोचता है, दूसरे के राइट्स के बारे में भी सोचता है। तो मोरालिटी किस चीज का बाय प्रोडक्ट है? जैसे जैसे एक जानदार की सोच कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, उसके अंदर मॉरल सेंस बढ़ती जाएगी। उसे यह भी ज्यादा फील होगा कि मुझसे ज्यादती हो रही है, और उसे यह भी ज्यादा फील होगा कि किसी और के साथ ज्यादती हो रही है। मोरालिटी बेसिकली हायर ब्रेन फंक्शन का बाय प्रोडक्ट है, एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है सोसाइटी की। जब सोसाइटी बनती है, डिफरेंट इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसका बाय प्रोडक्ट है मोरालिटी, क्योंकि उन्होंने एंगेज करना है किसी ना किसी रूल्स के मुताबिक, और वो रूल्स जो है वही मोरालिटी है। वो प्रिमिटिव भी हो सकती है, वो आर्केइक भी हो सकती है, वो मॉडर्न भी हो सकती है, वो पोस्ट मॉडर्न भी हो सकती है। मोरालिटी ये है। जी बहुत शुक्रिया। एक इस्लामिक अपोलॉजिस्ट है, उसका नाम है डैनियल हकीकजू, और वो कहता है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा जो है कंसेंट के ऊपर फोकस करते। तो उसका सवाल ये है कि अगर कोई इंसान जानवर के साथ सेक्स करना चाहे कंसेंट के साथ, तो फिर ये एथियस्ट मोरालिटी के हिसाब से मॉरल होना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो वैसे बेचारा जानवर ही है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि कंसेंट वही दे सकता है जो कि कंसेंट दे सकता है, मुंह से कंसेंट दिया जाता है। कंसेंट एक अपना इरादा बताया जाता है कि हाँ भाई मैं सेक्स के लिए राजी हूं। तो बकरी क्या दे सकती है? और कौन से मौलवी हैं जो कंसेंट करते हैं? अभी पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों एक बकरी के साथ सेक्स करते हुए मौलवी की वीडियो आ गई थी। तो अब सोचने की बात है ना कि हकीकाचू जो है भैया बकरियों के साथ, जानवरों के साथ, गधों के साथ सेक्स तो आपके मोमिनीन कर रहे हैं, एथियस्ट तो नहीं कर रहे भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। आखिरी सवाल है बस कि मुसलमान कहते हैं कि मजहब के बगैर कोई मोरालिटी नहीं होती, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मजहब आज दुनिया में जो अप्लाई हुई है वो मजहबी मोरालिटी ही नहीं है। क्योंकि अगर मजहब की मोरालिटी एक कंप्लीट चीज होती और हम ये समझते कि मजहबी मोरालिटी जो है वो इंसान को समझाने के लिए काफी है, तो आज दुनिया ने अपने ये कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाए होते, पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन ना होता। क्योंकि फिर तो इस्लामिक मोरालिटी काफी थी ना, शरिया बना देते, आप लगा देते और शरिया सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देती। आज आपने सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान में कानून और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया कि आप मजहबी मोरालिटी के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। इंडिया में इसलिए है कि मनुस्मृति को आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसराइल में सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है कि वो भी उसकी मूजिज की शरिया को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनका ये क्लेम कि मजहब मोरालिटी देता है, ये तो पहले ही पिट चुका है। क्योंकि दुनिया में आज बहुत कम ही कोई मुल्क है, शायद एक तालिबान का अफगानिस्तान ही है जिधर शरीयत नाफिज है या किसी किस्म की मजहबी मोरालिटी या मजहबी कानून नाफिज है। दुनिया सारी के कानून मजहब की दी हुई मोरालिटी आज के कानून को का अहाता करती ही नहीं है, वो उसे अनकंपस कर ही नहीं सकती आज के प्रॉब्लम्स को। आज के प्रॉब्लम्स क्या हैं? इंटरनेट पे कोई फ्रॉड करता है तो इंटरनेट का फ्रॉड इस्लाम कैसे उसके बारे में लॉज एंड रेगुलेशंस बताएगा? इंटरनेट पे भी फ्रॉड होता है ना। एक सिंपल बात है कि एक आदमी है, इंटरनेट पे कई बार ऐसा हुआ है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू फ्रॉड के, कोई शख्स ऐसा होता है कि वो करोड़ों बैंक्स अकाउंट से 50 सेंट निकाल लेता है। 1 करोड़ बैंक अकाउंट से एक बंदे ने 50 सेंट निकाले हैं तो उसके पास $25 मिलियन आ गए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि बात किधर गई? अब आप इस्लाम तो शायद इस बात को, और वो पैसे किसी को नजर भी नहीं आ रहे, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी इस बारे में क्या कहेगी? नहीं कुछ भी कह सकती।
मगर मसला ये है कि ये कॉम्प्लेक्स बातें आज जो नई चीजें आ गई हैं सामने वो और चीजें हैं, ठीक है। ब्लड डोनेशन है, अब एक सिंपल बात है कि इस्लाम तो ब्लड डोनेशन के बारे में बात ही नहीं कर सकता ना। तो एक सिंपल बात है कि आज आप ब्लड डोनेशन होती है, ब्लड का ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मुझे ओ पॉजिटिव लगना है, मैं हॉस्पिटल जाऊं और कोई डॉक्टर मुझे ए पॉजिटिव लगा दे तो मैं तो गया ना मर। अब इसकी मोरालिटी कहां से बताएगा इस्लाम? नहीं बता सकता ना, ठीक है। तो इस्लाम हमें नहीं बता सकता कि गलत टाइप का ब्लड बंदे को नहीं लगाया जा सकता। तो मोरालिटी जब जब सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी और नए प्रॉब्लम्स आते हैं, मोरालिटी के नए नए रूल्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। और बहुत से रूल्स आज ऐसे हैं जो कि इस्लाम ने डिसाइड नहीं किए, क्रिश्चियनिटी ने डिसाइड नहीं किए, मगर वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। और जब उनके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता तो सारे मसले हमारे क्या हैं, अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। और उन मसाइल का हल जो है वो इस बात की तलब करता है कि हमने कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, कैसे चीजों को अप्लाई करना है, इस वजह से ऐसे होता है, ठीक है। तो मोरालिटी बेसिकली इंटरेक्शन के रूल्स हैं सोसाइटी के दरमियान। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कादर भाई। चलें ठीक है, ओके थैंक यू, फिर आना, ओके बाय। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।